Hello students, today we have to discuss the remaining part of the agents of pollination, and we already in previous video completed the pollination by wind or anemophily. One thing of that part I remember is that why the pollen grains are formed large in number in comparison to single ovule. The question may be asked, and the correct answer is to compensate the loss of pollen grains during the transfer from anther to a stigma by wind. The pollen grains are produced in large number in comparison to ovule. This is the right answer. कहने का तात्पर्य है कि कोई पूछ सकता है कि क्यों भाई पोलन ग्रेन विंड पॉलिनेटिंग में या ऐसे भी पॉलिनेशन में ज़्यादा संख्या में बनाए जाते हैं जबकि ओव्यूल एक ही होता है। तो इसका सही जवाब यही होता है कि जो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का यात्रा होता है, यात्रा वृतांत होता है, जर्नी होता है, उसमें बहुत सारे लॉस होने के चांसेस हैं। बहुत सारे पोलन ग्रेन सही जगह पर स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते, लॉस्ट हो जाते हैं जर्नी के दौरान। तो उसको सेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए इस तरह से पोलन की संख्या ज़्यादा बनाई जाती है in comparison to ovule. आज हम लोग जो चर्चा करेंगे in this, the water is the another agent, and the water pollination or hydrophily is limited in plant numbers. About 30 genera of monocots mainly shows the case of water pollination or hydrophily. In algae or bryophytes, pteridophytes, we know that the water carry male gametes, then the fertilization occurs. इसी के चलते क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। जहाँ वाटर स्केर्स एरिया है, जहाँ जल की कमी होती है, वहाँ पर ये नहीं पाए जाएंगे ये ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, क्योंकि वहाँ इनको मेल गैमेट को ले जाने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, जल नहीं है। दूसरा है कि इन फ्रेश वाटर प्लांट लाइक वेलिसनेरिया, हाइड्रिला and the Zostera, a sea grass in marine habitat, shows the hydrophily or the water pollination. In general, the exceptions are also there. इसका मतलब ये नहीं कि जितने जल में पौधे उगते हैं सभी में पानी के द्वारा ही पॉलिनेशन की क्रिया होती है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वाटर हायसिंथ। आपने देखा होगा कि ये पौधा ब्लू रंग का फ्लावर देता है जो कि एयर में रहता है, जस्ट अबव द वाटर लेवल। सिमिलरली द वाटर लिली आल्सो ब्लूम्स above the water level, so in them either by wind or by insect pollination occur. But in case of Vallisneria, the female flower reach to the surface of the water body or the water, and the male gametes or the pollen grains are released into the water and they float passively with the water current and reach to the stigma, and in this way the pollination occurs. कहने का मतलब कि वेलिसनेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो लंबे डंठल के सहारे
पानी के सतह के ऊपरी सरफेस तक आ जाता है पानी के, और मेल गैमेट जो है रिलीज कर दिए जाते हैं पानी में पोलन ग्रेन्स, और जा करके वो पैसिवली फ्लोट करते हुए जल तरंगों के साथ स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, और इस तरह से उसमें पॉलिनेशन की क्रिया पूरी होती है। हाइड्रिला के केस में ये सबमर्ज्ड होते हैं और पानी के अंदर रिलीज हो जाते हैं पोलन ग्रेन, और ये धीरे धीरे स्टिग्मा तक पहुंचकर वाटर करंट के साथ पॉलिनेशन करते हैं। इन केस ऑफ जुस्टेरा, जनरली द लॉन्ग रिबन लाइक pollen grains are formed which passively floats in seagrass and Justeria and they participate in pollination। तो कहने का मतलब कुल मिला जुलाकर इसी तरह से पानी के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। Now the question arises कि what are the special adaptation in aquatic plants for pollination? So these are the important points. So it is noted on the board. Long ribbon-like pollen grains are formed in sea grasses and they passively float and with water current and reach to a stigma. The pollens coated with mucilaginous covering, पानी में सड़ने का डर है, रॉटन होने का डर है, इसलिए क्या होता है कि pollen grains are coated with mucilage covering that protect the pollens from wetting, and in this way they remains well adapted in the aquatic habitat. Flowers are not much colorful. In aquatic plants, flowers are not much colorful, and they also do not produce nectar in their flower. It means they produce nectarless flower. कहने का मतलब है कि लंबे फीता के तरह चपटे पोलन ग्रेन बनते हैं जो वाटर करंट के साथ आराम से बाउंड कर सके, पहुंचाए जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान, एंथर से स्टिग्मा तक, जैसे सी ग्रासेज में ऐसा पाया जाता है। दूसरी तरफ जो अदर एक्वेटिक है पॉलिनेटिंग प्लांट्स, वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स, उनमें पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट है उनके ऊपर म्यूसिलेज का चिपचिपा पदार्थ का एक कवरिंग होता है जो कि पानी से सड़ने से बचाता है, और इस तरह से पोलन मेल गैमेट जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। दूसरा जो है फ्लावर्स बहुत कलरफुल नहीं होते, और तीसरा नेक्स्ट जो है चौथा, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर भी उनके फूल में नहीं होता, क्योंकि नेक्टर एक अवार्ड के रूप में दिया जाता है पॉलिनेटर्स को, तो इनको पानी को उसकी जरूरत नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोफिलस प्लांट्स और देयर एडेप्टेशन। थैंक यू।